Hello children, we were discussing the chapter number 8, compound interest and simple interest. Question number 6. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. ठीक है, यानी आरिफ नाम का एक पर्सन है एंड शी टुक द लोन ऑफ 80,000. उसने क्या करा है, 80,000 का लोन बैंक से पिक करा है फ्रॉम द बैंक इफ the rate of interest is 10% per annum, यानी पर 1 ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर annum है, 10% पर annum. ठीक है, then find the difference in amount में difference find करना है. He would be paying after 1.5 year if the interest is the given following. ठीक है, यानी कि 1.5 ईयर के लिए फाइंड आउट करना है. सो राइट डाउन फर्स्ट व्हाट इज पी हियर. पी इज रुपीज 80,000. ठीक है, टी इज आर इज 10% पर एनम. ठीक है, 1 ईयर के लिए ही. ठीक है, एंड द टाइम टी is 1.5 year. ठीक है, now we have to calculate two things, compound annually यानी कि कैलकुलेशन जो हो वो annually हो and compounded half yearly. ठीक है, so how we calculate this? First amount, we know a means amount is equal to p multiplied with 1 plus r by 100 to the power is the formula of amount through the compound interest. ठीक है, what is P? 80,000 multiply 1 plus R is 10%. We will use two things here. R 10% for 1 year. 1 year के लिए तो 10% यूज करेंगे एंड हाफ ईयर के लिए यूज करेंगे 5%. ठीक है भाई, एनुअली है ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है. ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट फॉर 1.5 ईयर. सो वी विल यूज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 10% एंड द नेक्स्ट हाफ ईयर 5%. ठीक है, सो 1 प्लस r मींस 10 अपॉन 100 टू द पावर 1. ठीक है, ये 1 ईयर के लिए है एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 5% हो जाएगी. हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगी 5%. दिस विल बिकम 5 बाय 100 एंड हाउ मेनी हाफ ईयर 1 ईयर 1 हाफ ईयर. सो यू कैन कैलकुलेट दिस. ठीक है, नेक्स्ट 80,000 मल्टीप्लाई दिस विल बिकम 110 अपॉन 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 105 upon 100, 105 upon 100, 1 2 3 4 and 1 2 3 4. ठीक है, 40 cancel out, 110 105 and multiply with 8. We have to calculate this. 8 multiplied with 105, 110 and 105. ठीक है, so total amount is, we can calculate this, 88 multiply with 105. ठीक है, 88 multiply with 105. This will become 8 5 40, 8 1 8 multiply with the same 0 4 8 and this will 4 0 4 2 0 4 2 and 9. ठीक है, 9,240 and 10. ठीक है, this will become 92,400. First. ठीक है, next second compounded half yearly. ठीक है, so how many half yearly year here? 3. ठीक है, 1 month half yearly, 6 month कितने हुए 3 half yearly. So in next step we will use time is 3 half yearly means 3. ठीक है, so second P is
सेम 80,000 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस आर, 1 प्लस आर मीन्स 5 अपॉन 100 टू द पावर 3। ठीक है, वाई यूज किया, क्यों यूज करा मैंने इसे, क्योंकि 3 जो होंगे 3 हाफिली होंगे एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन हियर 10% पर एनम। ठीक है, एंड वी हैव टू यूज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफिली। इसमें क्या यूज करना है, सेकंड वाले में कंपाउंडेड हाफिली। ठीक है, सो टाइम भी हाफिली होना चाहिए एंड the rate of interest will also half-yearly. ठीक है, so half-yearly 5% and this will half-yearly 3 half-yearly, you can write here 3 half-yearly half year. ठीक है, so you can calculate this 80,000 multiply with, I am writing here directly 105 multiply 105 upon 100 3 times 105 multiply with 105 and multiply with 105 upon 100 and upon। ठीक है, you can calculate this 40 will cancel out 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, so we will calculate 105 multiply with 105 multiply with 105 and upon 100, this will become you can calculate this 92,610 rupees। ठीक है, and we have to calculate the difference, find the difference in amount। so which amount is greater, 92,400 and this is 92,600, so the difference is 92,400 minus 610 minus 92,400 210। ठीक है, is the 210। next is question number 7। this will also same। Maria invested ₹8,000 in a business, यानी मारिया ने विद कैपिटल 8,000 से बिजनेस स्टार्ट करा है। सो व्हाट इज द पी, प्रिंसिपल अमाउंट पी इज 8,000। ठीक है, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी 5% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम एंड कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन इन एनुअली। ठीक है, तो एनुअली में गिवन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ दिस द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी 2 मंथ के लिए, सॉरी 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, सॉरी अमाउंट, सो व्हाट इज द अमाउंट, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दिस, पी इज 8,000। ठीक है, एंड 1 प्लस आर इज 5 अपॉन 100 टू द पावर 2 so you can calculate this easily। 8,000 multiplied with 105 will multiply 2 times 105 upon 105 upon 100। ठीक है, so 1 2 and 3 0 will cancel out। ठीक है, 105 and 105, so what remain 105 multiplied with 105 and multiplied with 8। ठीक है, this remain here and in denominator 10। ठीक है, so this will become, you can calculate this 105 and 108
105 from 105, 25 and this 11,025 and upon 10, 11,025 and upon 10, this means 0.5. ठीक है, 102 1,102.5. ठीक है, this is the first row and the second ठीक है, is the amount. Next 8,000, just read. Correct, yes, this is correct, and we have to multiply this 8 also. 8 से भी तो multiply करना है, so multiply 8 also. 110, 25 multiply with 8. Okay, 8 5 is 44, 8 2 16, 0 2 2, 8 1 is 8 and 8 1 is 8, 88,200 and upon 100 10. 88,200 and upon 10 means 10 will cancel out, so 88,020 only. 88,020 rupees, sorry, 8,820 rupees. And the next second one, the amount credited against her name, the interest for third year means third year में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. ठीक है, सो 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, सॉरी अमाउंट ये है. ठीक है, 2 ईयर में इतना हो गया, तो अब जो थर्ड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वी कैन कैलकुलेट दैट अमाउंट बाय द सिंपल इंटरेस्ट. तो इससे कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से कर सकते हैं. बाय देखो 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मींस अकाउंट में ये अमाउंट आ गया 8,820 रुपीज इज इन क्रेडिटेड इन माय अमाउंट, ये अकाउंट, यानी कि ये अमाउंट अकाउंट में हो गया है. अब फॉर थर्ड ईयर, तो 3 ईयर के लिए क्या हुआ, 3 ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द सिंपल इंटरेस्ट. तो बाय द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज पी आर पी एंड अपॉन 100. ठीक है, सो थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, मीन्स 1 ईयर के लिए भाई 2 ईयर्स का तो हो गया टोटल अमाउंट ये. अब फॉर थर्ड ईयर वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस विल बिकम पी इज 8,820 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 5% एंड द पी 1 ईयर मीन्स फॉर थर्ड ईयर भाई 2 ईयर्स के लिए तो ये हो गया, एंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर मीन्स 1 ईयर और हमको ऐड करना होगा, तो 1 ईयर एंड अपॉन 100. ठीक है, so you can calculate this. 1 0 will cancel out, 5 2 is 10, carry 1, 5 8 is 40, 40 plus 1 41, carry 4, 5 8 is 40, 40 plus 4 44 and upon 10 means 421. Check it again. 5 2 is 10, carry 1, 5 8 is 40, 41, 1 carry 4 and 5 5 is 40, 44, 44 upon 10. Okay, correct. So 441 rupees is the interest of for 3 years.